Now we're going to discuss the next paragraph. A grandmother was always when grandfather brought home some new bird animal, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather, I put him away in a little closet opening into my bedroom, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened to the wall. So finally, uh, grandfather bought Toto and brought Toto home. But here we see the tendency of grandmother. When grandmother comes to know that grandfather has brought some new bird or animal, then she became angry. She became angry. She didn't like it. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a good mood. So, grandfather, I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, और सो वी थॉट टू अ peg fastened to the wall. सो यहाँ पे राइटर बताता है कि ग्रैंड मदर जो है बड़ी परेशान हो जाती है, वो गुस्सा होती है जब भी ग्रैंडफादर जो है एक नए बर्ड या एनिमल को ले आते हैं. इसीलिए टोटी की प्रेजेंस जो है ग्रैंड मदर छिपाई गई और तब तक छिपाई जाएगी जब तक वो अच्छे मूड में नहीं होगी. अच्छे मूड में होगी तो उसको बता दिया जाएगा कि नया जो है एनिमल पेट एनिमल जो टोटो है उसको लाया गया है. ग्रैंडफादर और राइटर दोनों ही क्या करते हैं, उसको जो है राइटर के बेडरूम में उसको छुपा दिया जाता है, एक हुक से बांध दिया जाता है और इसके बाद वो चले जाते हैं. A few hours later, when grandfather I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. So here in this paragraph, after some work, when grandfather and writer came, they found that the Toto was not there. Toto had released himself, and we found what we found, that Toto had destroyed the ornamented decorated wall. He has snatched the ornamental paper from the wall. Now the walls looked savvy, and the peg in the wall had been wrenched from its socket, and the school blazer was torn into pieces. It was done by whom? Toto. At this, grandfather was happy. He was pleased with the Toto's performance, and the writer himself is thinking of grandmother. इस पैराग्राफ में राइटर बताता है कि कुछ घंटों बाद जब वो वापस आते हैं टोटो को लेने के लिए, वो पाते हैं कि टोटो ने जो है दीवार को क्या कर दिया है, ख़राब कर दिया है. ऑर्नामेंटल पेपर से जो दीवार डेकोरेटेड थी उस पेपर को उसने हटा दिया, और दूसरी चीज़ जो पेग थी वॉल में, उस पेग को अलग कर दिया टोटो ने उसके सॉकेट से, और राइटर के स्कूल ब्लेज़र को कई टुकड़ों में उसने बांट दिया. ये पहली एक्टिविटी थी टोटो की. टोटो की इस एक्टिविटी पर ग्रैंडफादर बड़े खुश हैं, उन्हें चिंता नहीं है कि ग्रैंडमदर क्या सोचेगी. आफ्टर दिस वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. ग्रैंडफादर said, "He is clever. Give him time. I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window." ये रिमार्क है ग्रैंडफादर का कि वो बहुत ही चालाक है. उसने क्या किया कि राइटर के ब्लेजर को कई टुकड़ों बांटा और उससे रस्सी बना करके विंडो से भाग गया. ये अनुमान है ग्रैंडफादर का. इसीलिए उसने कहा कि ही इज़ क्लेवर. कौन क्लेवर है? मंकी बहुत ही क्लेवर है. क्यों? क्योंकि उसने क्या किया
कि राइटर के ब्लेजर को स्कूल भेजो कई टुकड़ों में बांधा, उससे रस्सी बनाई और विंडो से भाग गया। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी भी उसकी प्रेजेंस जो हाउस में क्या है, एक सीक्रेट है। टोटो was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. Tortoise, pair of rabbits, squirrel, for a while my pet goat. So इसलिए अब इस घटना के बाद टोटो को ट्रांसफ़र किया गया बिग केज में, जहाँ पे अन्य पेट्स रह रहे हैं सोशियबली, सामाजिक रूप से मिलजुल कर सारे पेट्स रह रहे हैं बिग केज में, जो कि सर्वेंट के क्वार्टर पे है। अब उसमें कौन ऐड होने जा रहा है? टोटो उसमें ऐड कर दिया जाता है। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। टोटो एक दिन रहा बिग केज में और किसी भी जानवर को आराम से रहने नहीं दिया, सोने तक नहीं दिया। इसलिए ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। इसलिए ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि वो उसको ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि टोटो को वो अपने साथ देहरादून ले जाएंगे। अगले दिन वो देहरादून जा रहे हैं अपनी पेंशन लेने के लिए, पेंशन इन सहारनपुर। इस पैराग्राफ में राइटर बताता है कि ग्रैंडफादर का मानना है कि टोटो क्या है, बहुत ही चालाक है, क्योंकि उसने दिए गए समय में ब्लेजर को रस्सी बना दिया और उससे भाग गया विंडो से, और साथ ही उसकी प्रेजेंस क्या अभी भी सीक्रेट है घर में। इसलिए टोटो को जो है एक बड़े केज में ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ पे अन एनिमल बड़े ही से रह रहे होते हैं। लेकिन टोटो जब एक रात वहाँ रहता है तो वहाँ के किसी भी जीव को, किसी पेट्स को आराम से रहने नहीं देता है, उनको परेशान कर देता है। इसलिए ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि टोटो को लेकर कहाँ जाएंगे, देहरादून, और वो सहारनपुर जा रहे हैं क्या, अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए। सो इन दिस पैराग्राफ द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड द अनदर मिस्चीवियस एक्टिविटीज ऑफ Toto. The second mischievous activity of Toto was that Toto didn't allow any pets to sleep at night in a big cage. Okay, thank you.